Welcome friends. Topic for today's discussion is accounts from incomplete records, which is also known as single entry system. Students, this is one of the important topic in financial accounting. Now let us discuss about the single entry system. This system is generally adopted by the small business concerns or small business organization or small traders because it is very simple and less costly. As a small business organization or small traders are not able to appoint a separate accountant, they record these transactions themselves. Okay, and they record only one effect of the transactions, and that's why this method or this system is considered as unscientific, right? Because see friends, we know that in accounting we have to record the business transactions by following the double entry bookkeeping system, but when only one aspect of transaction is recorded, then it becomes unscientific. Okay, and this is the reason we call it as single entry system, because only one aspect of the transaction is recorded. That's why it is known as single entry system. Okay, now see, under this system, only personal account and cash transactions are recorded by the uh, trader, right? Only personal accounts and cash transactions. Okay, so we know that generally businessmen or small business traders keep information about the cash received and cash paid to the persons. Okay, so in this way they maintain personal account, and along with that they record all the cash transactions. Okay, so only personal account and cash transactions are recorded, and impersonal account and other real accounts are not maintained under the single entry system, right? So basically these small traders, as they are not aware about the rules of accounting and accounting procedure, they just keep records about the personal accounts, that is to whom we receive the cash or goods, and to whom we paid the cash, or to whom we send the goods. In this way they maintain personal account, and all cash transactions are recorded. Okay, and as we have already discussed that only one effect of transaction is recorded in the single entry system, and that's why this system is considered as unscientific, right? But uh, as an accountant or as a student, we have to find out the profit or loss of that business organization which keeps their books of account as per the single entry system. And for that purpose we have two methods in this topic. Okay, first method is statement of affairs method, and second method is conversion method. Okay, so now we are going to discuss about these two methods in detail, and how the profit is ascertained under these two methods, and what is difference between these two methods. Okay, now let us start with the first method, that is statement of affairs method. See friends, under statement of affairs method, the main focus is on the capital balances. Okay, under statement of affairs method we find out the opening capital and closing capital of the business organization, and the closing capital is compared with the opening capital, and in this way we can ascertain the profit and loss of the business organization. Okay, to understand this first method, or to understand the statement of affairs method, let us take an example. Okay, so here on screen you can see here is a question. In question, we have information in the form of particulars, and 31st March 2018 and 31st March 2019. Okay, and in particulars we have the information related to plant and machinery, furniture and fitting, stocks, debtors, cash and bank balance, sundry creditors, bank loans, etc. So basically in question the information is given for 2 years, for 2018 and 2019, and these are nothing but the balances of assets and liabilities. Okay, so here we can say that we have opening balances of assets and liabilities and closing balances of assets and liabilities. Okay, तो यहाँ क्वेश्चन में हमें क्या दिया है,
opening balance of assets and liabilities and closing balance of assets and liabilities. On the basis of this information, we can find out the opening capital of the business organization and closing capital of the business organization. Okay, and by comparing the opening capital and closing capital, we can ascertain the profit or loss of the business organization. Okay, so see friends, here we are discussing about the statement of affairs method in single entry system. Okay, so statement of affairs method में क्या होगा, ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज दिए होंगे. तो इसे सॉल्व कैसे करना है, देखिए तो यहाँ पे हमें स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स प्रिपेयर करना होता है. सी फ्रेंड्स, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स इज नथिंग बट अ बैलेंस शीट. ओके, बैलेंस शीट का ही दूसरा नाम है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स. तो वी नो दैट इन बैलेंस शीट वी रिकॉर्ड ऑल द लायबिलिटीज ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड ऑल द एसेट्स आर रिकॉर्डेड ऑन द राइट हैंड साइड. ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन द बुक्स ऑफ अमित स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन 31st मार्च 2018 एंड 31st मार्च 2019. ओके, सो दोनों डेट्स के लिए हमने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एक ही कॉलम में यहाँ पे प्रिपेयर किया है. एक ही, तो यहाँ पे फर्स्ट हम 2018 की इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करेंगे. तो 2018 के लिए देखिए, प्लांट एंड मशीनरी 22,500, तो यहाँ असेट साइड में लिखेंगे 22,500. देन फर्नीचर एंड फिटिंग 7,500. देन स्टॉक, उसके बाद सन्ड्री डेटर्स, कैश, देन सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड बैंक लोन. तो ये कैश एंड बैंक बैलेंस तक असेट में लिखना है. उसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड बैंक लोन हमें पता है कि ये लायबिलिटी है. तो यहाँ पे आप 2018 का कॉलम देख सकते हैं, यहाँ पे कर्सर है यहाँ पे कि 2018 के कॉलम पे लायबिलिटीज में दो ही नंबर है, बैंक लोन एंड सन्ड्री क्रेडिटर्स, जिसकी टोटल 14,000 है. बट असेट्स में बहुत सारे नंबर्स है. तो असेट की टोटल हम पहले करेंगे. तो असेट की टोटल यहाँ पे आती है 40,250. सो इस 40,250 में से हम 14,000 लेस करेंगे, तो हमें जो नंबर मिलेगा उसे हम कहेंगे ओपनिंग कैपिटल. ओके, सी फ्रेंड्स, मैं एक बार ये एक्सप्लेन करता हूँ फिर से कि हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज. तो पहले हम क्या करेंगे, 2018 के जो असेट्स एंड लायबिलिटीज है उसे लिखेंगे. अभी यहाँ पे जॉइंट स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स प्रिपेयर किया है, मतलब दोनों साल का स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स यहाँ एक साथ प्रिपेयर किया है. आप 2018 का स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स सेपरेटली प्रिपेयर कर सकते हैं और 2019 का स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स सेपरेटली प्रिपेयर कर सकते हैं. ठीक है, तो पहले हम 2018 का जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है उसके रिलेटेड डिस्कस करें. तो प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर ये एसेट है, कैश एंड बैंक बैलेंस तक एसेट साइड में लिखे. उसके बाद लायबिलिटीज में सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड बैंक लोन है, तो वो लायबिलिटीज में आ गए. अभी असेट्स की टोटल 40,250 आ रही है और लायबिलिटीज की टोटल 14,000 फॉर 2018. ये 2018 ईयर है, इसी ईयर के लिए. तो ये जो 40,250 है, इसमें से अगर हम ये 14,000 माइनस करेंगे तो हमें मिलेंगे 26,250. तो ये 26,250 क्या है, इट इज ओपनिंग कैपिटल बैलेंस. ओके, 26,250 ओपनिंग कैपिटल, क्योंकि 2018 का है ना. अभी 2019 का सेम असेट्स कॉलम में लिखेंगे, लायबिलिटीज कॉलम में लिखेंगे और हमें जो बैलेंसिंग करने के बाद नंबर मिलेगा. अभी टोटल असेट्स आ रही है 41,500 और टोटल लायबिलिटीज 8 + 2 10,500 है. तो ये माइनस करने के बाद हमें नंबर मिलेगा 31,000. तो ये 31,000 क्या है, इट इज क्लोजिंग कैपिटल. ओके, तो इसीलिए ये जो फर्स्ट मेथड है इसे हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड कहते हैं. हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के थ्रू क्या करते हैं, ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल ये फाइंड करते हैं. तो इसके पीछे का लॉजिक क्या है, देखिए स्टूडेंट्स, अगर कोई ट्रांजेक्शन्स नहीं, सिर्फ हम बैलेंस कंपेयर करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ओपनिंग कैपिटल 26,250 आया, क्लोजिंग कैपिटल 31,000 आया. तो कैपिटल इंक्रीज हुआ है, हम लॉजिकली कह सकते हैं ना. तो ये जो डिफरेंस है ना ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल, अगर क्लोजिंग कैपिटल ज्यादा है तो हम कहेंगे कि फर्म को ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट हुआ है. ओके, क्योंकि हमारा कैपिटल एट द बिगिनिंग कितना था, 26,250 और अभी एंड पे कितना हो रहा है, 31,000. ओके, तो ये जो डिफरेंस है ये बेसिकली प्रॉफिट है ड्यूरिंग द ईयर, ऐसे हम कंसिडर करें. अभी ये जो असेट्स एंड लायबिलिटीज के बैलेंसेस है उसके बाद हमें एक इंफॉर्मेशन दी है, कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड इन बिजनेस ड्यूरिंग द ईयर बाय प्रोप्राइटर 12,000 एंड ड्राइंग्स मेड फ्रॉम द बिजनेस ड्यूरिंग द ईयर 9,000. तो एडिशनल कैपिटल भी इंट्रोड्यूस किया है 12,000 और कुछ ड्राइंग्स भी हुए. तो अगर ऐसी कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है तो हमें अलग से स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाना होता है. ओके, ये तो हो गया स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स.
अभी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, इसमें क्या करना है, कैपिटल एट द एंड 31,000, इसमें से लेस कैपिटल एट द बिगिनिंग हमने किया 26,000, तो ये बैलेंस बेसिकली ये मोटा मोटा हम कह सकते हैं इट इज अ प्रॉफिट। बट ड्यूरिंग द ईयर कुछ ड्राइंग्स भी हुए थे, तो ड्राइंग्स ऐड करने 13,750 आता है, और एडिशनल कैपिटल भी तो इंट्रोड्यूस किया था उस बिजनेसमैन ने, तो वो एडिशनल कैपिटल लेस करना है, तो हमें मिलेगा प्रॉफिट फॉर द ईयर। ओके, सो अंडर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड हम इस तरह से प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फाइंड करते हैं। ओके, आई होप आपको ये जो फर्स्ट मेथड है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड, इस रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए रहेंगे। अगर कोई डाउट है आपको तो कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर आप इस पे मोर प्रैक्टिकल एग्जाम्पल चाहते हैं कि जिसका सॉल्यूशन मैं आपको प्रेजेंट करके दिखाऊं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अभी हम सेकंड मेथड डिस्कस करते हैं। ओके, तो सेकंड मेथड है हमारी सेकंड मेथड है कन्वर्जन मेथड। ओके, यहाँ पे फर्स्ट स्लाइड पे देख सकते हैं सेकंड मेथड है कन्वर्जन मेथड। अभी कन्वर्जन मेथड में क्या होता है, देखिए दोस्तों, ये सिंगल एंट्री सिस्टम है और जिसे हम अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड कहते हैं। तो अकाउंट फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड को हम कंप्लीट रिकॉर्ड्स में कन्वर्ट करेंगे, तो इसे कहते हैं कन्वर्जन मेथड। बेसिकली कन्वर्जन ऑफ सिंगल एंट्री इनटू डबल एंट्री, इसे कन्वर्जन मेथड कहते हैं। तो कन्वर्जन मेथड में क्या होता है, जैसे ट्रेडिशनली हम प्रॉफिट लॉस कहाँ पे फाइंड करते हैं, हाँ आपको बताइए कि हम प्रॉफिट लॉस ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते हैं, वहां पे होता है। ओके, ये ट्रेडिशनल मेथड। तो सेम थिंग यहाँ पे भी होगा, हम अंडर कन्वर्जन मेथड क्या करेंगे, सिंगल एंट्री को डबल एंट्री में कन्वर्ट करेंगे, मतलब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे और बैलेंस शीट बनाएंगे। तो प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट में पता है हमें क्या क्या आता है, सेल्स, उसके बाद ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, ये सारी इंफॉर्मेशन हम कहाँ रखते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे ना, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, परचेसेस, सेल्स, उसके बाद कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे तो वो रिकॉर्ड करेंगे। यहाँ पे आप जो क्वेश्चन देख रहे हैं अभी स्क्रीन पे, ये क्वेश्चन यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। तो ये क्वेश्चन बेसिकली हमें सॉल्व करना है एज पर कन्वर्जन मेथड, क्योंकि आप यहाँ एट द एंड ऑफ क्वेश्चन देख सकते हैं कि कहा गया है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2014 एंड बैलेंस शीट। तो अगर आपको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए कहा जाता है, तो इट मींस इट इज अ कन्वर्जन मेथड। ओके, तो इसमें जैसे मैंने बोला कि हमें क्या करना है, ओपनिंग मतलब सारे ट्रेडिंग अकाउंट रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो ट्रेडिंग अकाउंट में लिखनी है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखनी है। अभी वो इंफॉर्मेशन कैसे, देखो यहाँ पे आप अगर कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे ना हम यहाँ पे, तो आपको पता चलेगा। यहाँ पे देखिए समरी ऑफ बैंक ट्रांजेक्शन दिया है, जिसमें देखिए बैलेंस एट बैंक, सन्ड्री डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, कमीशन रिसीव्ड, कैश सेल्स, ये दिया ना। तो कमीशन रिसीव्ड कहाँ पे जाएगा, एक पॉइंट जस्ट मैं आपको रैंडमली पूछ रहा हूं, तो ये इनकम है तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड। कैश सेल्स कहां पे लिखेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे। ड्राइंग्स क्या करते हैं हम, कैपिटल में से माइनस, देन क्रेडिटर्स वही लिख। उसके बाद देखिए वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे, सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, रेंट एंड टैक्सेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये कैरेज इनवर्ड है तो ये ट्रेडिंग अकाउंट में, एडवर्टाइजिंग प्रॉफिट है। तो ऐसे जो भी आइटम्स दिए, जो भी इंफॉर्मेशन दी हमें, उसी इंफॉर्मेशन से जो रिलेवेंट आइटम्स है, लाइक ट्रेडिंग अकाउंट की इंफॉर्मेशन ट्रेडिंग अकाउंट में लिखनी है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की इंफॉर्मेशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और बैलेंस शीट की जो इंफॉर्मेशन है वो बैलेंस शीट में। यहाँ पे अभी जो पर्टिकुलर ऑफ अदर असेट्स एंड लायबिलिटीज, दो डेट है देखिए, 31 मार्च 2014 एंड 31 मार्च 2013 एंड 31 मार्च 2014, 2 साल की इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टॉक इन हैंड 18,700 ये 2013 का, तो ये ओपनिंग स्टॉक हो गया आपका, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे। और 31 मार्च 2014 का ये क्लोजिंग स्टॉक हुआ, तो ये कहाँ पे लिखेंगे हम, क्रेडिट ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे, और एट द सेम टाइम हम इसे बैलेंस शीट में भी लिखेंगे। ओके, तो इस तरह से कन्वर्जन मेथड में हमें ये जो सिंगल एंट्री में इनकम्प्लीट रिकॉर्ड है, इनका कन्वर्जन करना होता है डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम में। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको इस मेथड पे भी, कन्वर्जन मेथड पे भी अगर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम और उसका डिटेल सॉल्यूशन चाहिए, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।